جہاں آپ دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں دلوں کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے، انہیں صاحب ایمان بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہونا کہ جہاں برائی دیکھیں اچھے انداز سے اس کو سمجھائیں، اور جہاں نیکی دیکھیں وہاں پر موٹیویٹ کریں، ابھاریں اور ہمت افزائی کریں، تو اگر ایسا ماحول ہم نے اپنے گھروں میں کریٹ کیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا جو نسلیں ہمارے گھروں میں پل رہی ہیں، جو نیو جنریشن جس کو لے کر ہم بہت فکر مند ہیں، اگر ہم نے اپنے گھروں میں ایسا ماحول قائم کیا، دینی ماحول اگر ہم نے اپنے گھروں میں قائم کیا، اللہ کی قسم ان بچوں کا ذہن بدلے گا، ان بچوں کی سوچ بدلے گی، ان بچوں کو اچھی صحبتیں نصیب ہوگی، ان بچوں کی پڑھائی پہ توجہ ہوگی، اور یہ بچے اپنا فیوچر روشن کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر بچوں نے اپنی ماں کو مصلی بچھا کر وقت پر نماز پڑھتے ہوئے پایا، اگر بچوں نے اپنی ماں کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا، بچوں نے اپنی ماں کو دین پر عمل کرنے والی اگر بچوں نے پایا، کیا اللہ کے بندو ان بچوں میں ہم بگاڑ کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ان بچوں میں ہم جھوٹ کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان بچوں میں سبحان اللہ بے دینی کا تصور کر سکتے ہیں؟ آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بے دینی کی شروعات ہمارے گھروں سے ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ بے دینی کی شروعات ہم نے اپنے گھروں سے کی، اور باہر کی زندگی میں آ کے ہم شکایت کرتے ہیں، مولانا نوجوانوں کا اڈا ادھر نظر آتا ہے اور فلاں وہاں بہکتا ہوا ماحول نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، گھر کا جو بگڑا ماحول تھا اسی کا اثر باہر کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا صرف بچوں کو کچلا جاتا ہے، صرف مارا جاتا ہے، اٹھے بیٹھے صرف مارتے ہیں ہم، تو اس لیے بچوں کے ذہن میں کیا نفرت پیدا ہوتی ہے، باپ کو دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ کبھی باز جو ہے باپ کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، مولانا میرا گھر میں ایسا روب ہے نا، گھر میں داخل ہو تو کیا مجال میرے بچوں کو کہ وہ مجھ سے قریب آ جائیں، مجھ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کریں۔ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بچے جو ہے بالکل شریف بن جاتے ہیں، کوئی مجھ سے قریب آتا بھی نہیں، پورا ماحول کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی تعریف والی بات ہے کہ آپ گھر میں اس انداز سے داخل ہوں کہ گھر والے سمجھیں، بچے سمجھیں ہاں اب جلاد آ گئے ہیں، اب بالکل جو ہے ہم اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی پھر ان کی برائی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایکٹنگ والی زندگی ہم اپنے بچوں کو جو ہے واللہ فراہم نہ کریں۔ بچے ایسے ہوں ان کا چہرہ اور ان کا دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ قابل احترام صدر اجلاس حفظہ اللہ ورعاہ، مجلس میں موجود موقر علماء دین، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اس عظیم اجلاس میں جمع ہیں۔ پروردگار ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جن نیک مقاصد کے ساتھ ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک مقاصد میں عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، ہر شخص جو ذی شعور ہے، باشعور ہے، جو عقل و ہوش رکھتا ہے، وہ اچھی طرح سے محسوس کر رہا ہے کہ آئے دن ملک ہندوستان کے احوال اور حالات کس قدر بڑی تیزی سے بدلتے اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ خصوصاً نوجوان طبقہ جو معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، جس کو رول ماڈل ہونا چاہیے، جو خیر کے میدان میں آگے نظر آنا چاہیے، جس کی زندگی معاشرے کے افراد کے لیے مثالی ہونی چاہیے،
آج نوجوان طبقے کا حال کیا ہے؟ ہر کوئی اچھی طرح سے محسوس کر رہا ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن کے مقابلے میں دینی ناحیے سے، اخلاقی ناحیے سے، علمی ناحیے سے جیسے بہتری ہونی چاہیے وہ بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، جیسے اصلاح ہونی چاہیے وہ اصلاح نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اور فکر مند ہونا چاہیے، اس معاملے کو لے کر پریشان ہونا چاہیے، اور وہیں پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ قدم کو اس قدر آگے بڑھائیں کہ مسائل کو ہم حل کرتے چلیں، معاشرے اور سوسائٹی سے بگاڑ کو ختم کرتے چلیں، نیکیوں کی بیج بوتے چلیں اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرتے چلیں۔ حقیقت میں دوستو، جب حالات پر غور کرتے ہیں، مسلم امت کے اندر پائے جانے والے بگاڑ کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بگاڑ کی اصل بنیاد کیا ہے، بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے، کہاں سے خرابی شروع ہو رہی ہے اور خرابی کا اصل مقام کیا ہے، کیوں اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، کیوں بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، کیوں مسلم سوسائٹی میں دین کا وہ ماحول نظر نہیں آ رہا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے باہر کی دنیا پہ ہماری بڑی توجہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خلل نظر آئے تو دور کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جہاں سے اصلاح ہونی چاہیے، جہاں سے دینداری کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے بہتری کا سفر شروع ہوتا ہے، اس مقام کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور باہر کی دنیا میں جو خامیاں اور خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کی جو اصل وجہ ہے ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہماری مراد گھر ہے، گھر سے اصلاح ہوتی ہے، گھر سے نسلیں تیار ہوتی ہیں، گھر سے دینی ماحول قائم ہوتا ہے، گھر سے ایک انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے، گھر سے دلوں کو کھنگالا جاتا ہے، گھر سے انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، گھر سے انسان کو سبحان اللہ انسان بن کر جینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ واللہ گھر تربیت گاہ ہے۔ ہم نے گھر کو کیا سمجھا؟ جب بھی کچھ پریشانی ہو جسمانی ناحیے سے، کچھ آرام کے لیے ہمیں گھر یاد آتے ہیں، کھانے پینے کے لیے گھر یاد آتے ہیں، اور اسی طرح سے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اپنے تعلقات کا اظہار کرنے اور اپنے جذبات اور فیلنگز کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں گھر یاد آتے ہیں۔ دوستو حقیقت میں یاد رکھیں، جہاں ہم اپنی دنیاوی بہت ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر کا سہارا لیتے ہیں، اصلاح کے لیے بھی گھر ہی کا سہارا لینا چاہیے۔ واللہ گھر امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ اللہ نے جو ہمیں چھت عطا کی ہے نا، واللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ گھر کی شکل میں جو مجھے اور آپ کو چھت ملی ہے، اس چھت کی حفاظت کیجئے گا۔ واللہ یہ ایسی چھت ہے، یہاں سے آپ ایک دینی ماحول پیدا کر کے باہر کی دنیا کو آپ بدل سکتے ہیں، باہر کی دنیا میں آپ اصلاح کا بیڑا آپ اٹھا سکتے ہیں، باہر کی دنیا میں پائی جانے والی خرابیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ گھر پہ توجہ دیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل جو 14ویں پارے کی بڑی عظیم سورت ہے، جس سورت کو مفسرین نے سورۃ النعم کہا،
آپ اس سورت کا مطالعہ کیجئے گا، اس سورت کو آپ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی فہرست میں، ان نعمتوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے گھر کو ایک بطور نعمت کے طور پہ پیش کیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو قیام کا، ٹھہرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو گھر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر مسئلے کا تم حل چاہتے ہو، سلوشن چاہتے ہو، آپ گھر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ گھر کی اصلاح یہ وقت کی اہم ضرورت ہے دوستو۔ اگر ہمارے گھر سنور جائیں، باہر کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ گھر میں اگر سدھار آ جائے، واللہ دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، دلوں کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ اہل خانہ جب ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں دینی ناحیے سے، آپ اس گھر والوں کو دیکھیے گا، اللہ اکبر، کیسے دین کے معاملے میں بڑے حریص اور شوقین نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو دین سے آباد کر کے رکھا ہے۔ اس گھر میں دین زندہ ہے تو اس گھر کے افراد کے دلوں میں بھی دین کو لے کر ایک زندگی آپ کو نظر آئے گی۔ باہر کی زندگی میں کیوں دینی ماحول نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں ہمارے ضمیر آئے دن مردہ ہوتے جا رہے ہیں؟ احساس نہیں ہے، اپنی غلطی اور کوتاہی کا ہمیں احساس نہیں ہے، کیونکہ اہل خانہ میں کبھی یہ ماحول ہم نے پایا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے بارے میں کہا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کس معاملے میں تعاون کرتے ہیں، کس فکر کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اپنے سبحان اللہ فیلنگ کو وہاں شیئر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کی فکر اور جتن کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کا کہاں مانتے ہیں، رسول کا کہاں مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر آسمان سے اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا دوستو ہم اہل خانہ کو مومن پاتے نہیں؟ کیا ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید کی چھت عطا کیا ہے، توحید کا سایہ عطا کیا ہے، دین کی عظیم نعمت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم کافر کو پاتے نہیں، مشرک کو پاتے نہیں، بلکہ ہم ان بندوں اور بندیوں کو پاتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہے، توحید جو ہے ان کی پہچان ہے، دین اسلام کی تعلیمات ان کی پہچان ہے۔ ایسے ہی افراد کو ہم پاتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ جب دین جو ہے ہماری پہچان ہے، توحید ہماری پہچان ہے، اور آخرت کی فکر کرنا ہماری پہچان ہے، کبھی گھر والوں میں ہم اس فکر کو لے کر بیٹھتے نہیں، گفتگو کرتے نہیں اور جمع ہوتے نہیں۔ فیملی گیدرنگ ہوتی ہماری، کیسی گیدرنگ ہوتی ہے؟ اللہ خوش اور آباد رکھے، ہونی چاہیے ایسی گیدرنگ تو ہونی چاہیے۔ آپ تو وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، اہل خانہ کو جمع کیا، اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ان نعمتوں کے سہارے ان کے دل کو سبحان اللہ خوش کرنے کی آپ نے کوشش کی۔ جہاں آپ دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں دلوں کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے، انہیں صاحب ایمان بنانے کی کوشش کیجیے، انہیں ایک خالص پکا سچا مومن بنانے کی آپ کوشش کیجیے گا۔ تو دوستو یہ ماحول ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیجئے گا اگر ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہونا کہ جہاں برائی دیکھیں اچھے انداز سے اس کو سمجھائیں، اور جہاں نیکی دیکھیں وہاں پر موٹیویٹ کریں، ابھاریں اور ہمت افزائی کریں، تو اگر ایسا ماحول ہم نے اپنے گھروں میں کریٹ کیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا جو نسلیں ہمارے گھروں میں پل رہی ہیں، جو نیو جنریشن جس کو لے کر ہم بہت فکر مند ہیں، اس نیو جنریشن کا فیوچر ایک کوسچن مارک ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے اپنے گھروں میں ایسا ماحول قائم کیا، فکر
फिक्र मंदी का एक माहौल, दर्द मंदी का एक माहौल, एक दीनी माहौल अगर हमने अपने घरों में कायम किया, अल्लाह की कसम इन बच्चों का जहन बदलेगा, इन बच्चों की सोच बदलेगी, इन बच्चों को अच्छी सोहबतें नसीब होगी, इन बच्चों का दिल संवरेगा, इन बच्चों को पढ़ाई पर तवज्जो, इन बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो होगी और ये बच्चे अपना फ्यूचर रोशन करने में कामयाब होंगे, क्योंकि आपने पूरे घर को दीन से सजाया है, आपने पूरे घर को ईमान से सजाया है, आपने घर को नूरे ईमान से सजाया है, नूरे तौहीद से सजाया है। और जिस घर का माहौल नूरे तौहीद से सजाया हुआ हो, अल्लाह की कसम उस घर में पलने वाले बच्चे बहक नहीं सकते, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, गलत रास्तों पे लग नहीं सकते, दीन की सही तर्जमा नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह के बंदो, आज के इस खिताब में हमारा पहला पैगाम यह है, घर पे तवज्जो दीजिएगा, अहले खाना की फिक्र कीजिएगा, दीनी माहौल कायम कीजिएगा, अपने घर को आबाद रखने की कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे की आखिरत के सिलसिले में फिक्र कीजिएगा। अगर मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार अगर घर में ऐसा है जो जहन्नम की तरफ आगे बढ़ रहा है, हरकतें ऐसी हैं, एक्टिविटीज ऐसे हैं, ताल्लुकात ऐसे हैं, जबान ऐसी है, अल्लाहु अकबर, जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है, क्या फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी नहीं दोस्तों? हमारे नबी का हाल तो ऐसा था, खुद आपने फरमाया वअना आखिज़ुम बिहुजसिकुम व अंतुम तक्तहिमून फीहा। हमारे नबी इतने फिक्रमंद थे अपनी उम्मत के सिलसिले में, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं, राह जहन्नम को इख्तियार ना करना, जहन्नम का रास्ता इख्तियार ना करना, तौहीद को अपना लेना, और तुम हो के उसी राह जहन्नम पे चल पड़े हो, अल्लाह को नाराज करने वाला रास्ता तुम इख्तियार कर रहे हो। अल्लाह के नबी ने फिक्रमंदी और दर्दमंदी को पेश किया। दोस्तों, जब घर की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं, फिक्रमंदी और दीनदारी की बात करते हैं, औरत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वल्लाही इस पूरे सिस्टम को बनाने वाली अगर कोई है, संवारने वाली अगर कोई है, वल्लाही ये औरत ही है। याद रखना दोस्तों, औरत चाहे घर को आबाद कर सकती है, घर को मुनव्वर कर सकती है, घर को जन्नत नुमा बना सकती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने औरत के अंदर वो सलाहियत दी है, वो बिगड़े माहौल को बना सकती है। अल्लाह की बंदियों याद रखना कि तुम मामूली मखलूक नहीं हो। अल्लाह की बंदियों याद रखना कि तुम मामूली मखलूक नहीं हो। जिस इस्लाह की हम बात कर रहे हैं, जिस घर पे तवज्जो देने की हम बात कर रहे हैं, जिस फिक्रमंदी की हम बात कर रहे हैं, पूरा पूरा कंट्रोल और सिस्टम को आप बेहतर बना सकती हैं। कंट्रोल आपके हाथ में हो। अगर आप माशाअल्लाह इसी फिक्र के साथ आगे बढ़ें, फायदा क्या होगा? हमारे मर्द हजरात नमाजों के पाबंद होंगे, हलाल रोजी के पाबंद होंगे, अच्छी सोहबतों के पाबंद होंगे, दीन के पाबंद होंगे, तौहीद पे मरते दम तक बाकी रहेंगे। जब भी परेशानी हो, अपनी परेशानी का इलाज और उसकी दवा अपने घर की खवातीन में तलाश करेंगे। शर्त यह है कि घर की खातून दीनदार हो, फिक्रमंद हो, अल्लाह पर मजबूत ईमान रखने वाली बंदी हो। इसलिए हम खवातीन से अपील करेंगे, घर की इस्लाह में आप आगे बढ़िएगा। अगर आप नेक हैं, वल्लाही नेक माहौल आप कायम कर सकती हैं। आप दीनदार हैं, दीन को घर के एक एक हिस्से में आप दाखिल कर सकती हैं। आपका दिल अगर मुनव्वर है ईमान से, तौहीद से, आपके घर के बच्चे, नौजवान, बड़े, सबके दिल को आप संवार सकती हैं। अल्लाह ने औरत के अंदर वो कमाल और वो हुनर अल्लाह ने अता किया है। इसे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। ये पूरी दुनिया एक साजो सामान की इसकी हैसियत है, और इसका सबसे बेहतरीन खजाना क्या है जानते हैं? अल्लाह अकबर, नेक औरत है। इस रूए जमीन का सबसे बेहतरीन खजाना आप हैं। इस रूए जमीन की सबसे बेहतरीन पूंजी आप हैं। इस रूए जमीन का सबसे कीमती सरमाया आप हैं। गोया कि आप माहौल को बदलने में एक नुमाया किरदार अदा करने वाली हस्ती हैं। अल्लाह की बंदियों,
اس لیے عورت کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے. اس حوالے سے بنیادی طور پر 3 باتیں میں عورتوں کے حوالے کروں گا، غور سے سنیے گا. پہلی بات یہ ہے، آپ کا دین سے تعلق ہے، اللہ کی بندی ہو آپ. اللہ اکبر، آپ نے دین کو قبول کیا ہے، اسلام کو آپ نے اپنایا ہے، توحید کو آپ نے دل سے لگایا ہے، آپ نے اس شریعت کو اپنایا ہے. اللہ پہ آپ کا ایمان ہے، نبی پہ آپ کا ایمان ہے، اس شریعت پہ آپ کا ایمان ہے. اس کو آپ نہ بھولیں. کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جنہیں احساس ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں. ان کے ایکٹیویٹیز ایسے ہیں، ان کی زبان ایسی ہے، ان کے تعلقات و معاملات ایسے ہیں، کبھی شرم آتی ہے. کیا اللہ کی اس بندی کا رب پہ ایمان ہے؟ کیا یہ مومنہ بندی ہے؟ کیا اللہ پر اس خاتون کا ایمان ہے؟ اس لیے اللہ کی بندیوں، سب سے پہلے آپ اپنے مقام کو جانیے گا. آپ ایک مومنہ ہے، مسلمہ ہے، فرما بردار خاتون ہے، دین کی آپ پابند ہے، اور دین سے باہر نہیں ہیں آپ، ایمان سے باہر نہیں ہیں آپ، توحید سے باہر نہیں ہیں آپ. توحید کی پابند ہیں آپ، ایمان کی پابند ہیں آپ، دین کی پابند ہیں آپ، شریعت کی پابند ہیں آپ، شریعت کے لگام کو لے کے چلنے والی ہیں آپ. یہ سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے. دوسری بات جانتے ہیں کیا ہے؟ عموماً جب کہا جاتا ہے اللہ کے بندو یہ زندگی امانت ہے، عورتیں نہ بھولنا اپنے آپ کو. اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ حشر کی عدالت میں پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں تم نے خرچ کی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا. ان عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا. یہ صرف حضرات، مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں. اللہ ہر خاتون سے پوچھے گا تم نے زندگی کہاں کھپائی، تم نے جوانی کہاں تم نے خرچ کی، تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا. ہر خاتون سے اللہ حشر کی عدالت میں پوچھے گا. اس احساس سے زندگی بسر کرنا. یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بندیوں، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے. لہذا پہلے دین کا احساس ہو اور دوسرا زندگی کا احساس ہو. اس دین اور زندگی کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. تیسری اہم بات جو میں خواتین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا. جہاں آپ مومنہ ہیں، جہاں آپ کو اپنی زندگی کو لے کر بہت ہی فکر مند ہونی چاہیے، حشر کی عدالت میں ہمیں جواب دینا ہے، اس احساس کے ساتھ آپ کو گزارنا ہے. اس سے ایک عظیم مقام ہے آپ کا، اس سے بڑھ کر ایک عظیم مقام ہے آپ کا. وہ ہے آپ کے کندھوں پر تربیت کی ذمہ داری ہے، آپ کے کندھوں پر سوارنے کی ذمہ داری ہے، آپ کے کندھوں پر بنانے کی ذمہ داری ہے. عورت اسے نہیں بھولنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اللہ باپ سے ہی پوچھے گا، صرف باپ سے پوچھے گا، صرف سرپرست سے پوچھے گا. یاد رکھنا اللہ کی بندیوں، تمہارے کندھوں پر بھی تربیت کی ذمہ داری ہے. مرد حضرات سے کہیں زیادہ بنانے والی آپ ہیں، سوارنے والی آپ ہیں، نکھارنے والی آپ ہیں، ماحول کو بنانے والی آپ ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ بڑی عظیم حدیث، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس عظیم حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا. کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. حشر کی عدالت میں اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اللہ ضرور پوچھیں گے، ہر خاتون سے پوچھیں گے کہ تمہاری شادی ہوئی، اللہ نے شادی کے بعد نسل کو تمہارے حوالے کیا، اولاد کو تمہارے حوالے کیا، شوہر کے گھر کو تمہارے حوالے کیا، جہاں سے زندگی کا ایک نیا جو ہے سفر شروع ہوتا ہے، جہاں سے نسل انسانی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے شادی کے بعد. اور شادی کے بعد خاتون کو غیر معمولی ذمہ دار ہونا چاہیے. یہ 3 عظیم باتیں اپنے ذہن میں رکھنا. پہلی بات کیا ہے؟ آپ دین کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، آپ اللہ پہ ایمان ہے آپ کا. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے حوالے سے تم ضرور قیامت کے دن پوچھی جاؤ گی. اور تیسرا جس کو آپ ذہن میں رکھنا ہے، ایک عظیم ذمہ داری تربیت کی، سوارنے کی، بنانے کی اللہ نے تمہارے کندھوں پہ ڈال رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں بھی اللہ کی بندیوں ضرور تم سے پروردگار پوچھے گا. خاتون جب دیندار ہوتی ہے،
वल्लाही आप उस घर में पलने वाले बच्चों को देखिएगा, बड़े बाअदब और बाअखलाक नजर आएंगे, है कि नहीं? क्योंकि बच्चों का मिजाज क्या है, वो मर्द हजरात से ज्यादा खवातीन जो घर की हुआ करती हैं उन्हें देखकर वो सीखते हैं। मर्द हजरात तो बाहर की जिंदगी में काफी मसरूफ रहते हैं, लेकिन घर की जो खातून होती है ना, वो अपने बच्चों को सुबहान अल्लाह, जिसे हम माँ कहते हैं, अपने सीने से लगाती है वो। और सुबहान अल्लाह, माँ का किरदार क्या होता है? वो बच्चे हम वक्त अपनी माँ को जो है देखते हैं, अपनी माँ को मुकम्मल ऑब्जर्व करते हैं कि माँ की एक्टिविटीज क्या है, माँ की सोच क्या है, माँ क्या जो है बोलती है, माँ की जबान कैसी है, माँ का रब से क्या कैसा ताल्लुक है। ये सब बच्चे, उन्हें एहसास ना हो सही, लेकिन अपनी माँ को वो देखते हैं। अगर बच्चों ने अपनी माँ को मुसल्ला बिछाकर वक्त पर नमाज पढ़ते हुए पाया, अगर बच्चों ने अपनी माँ को हमेशा सच बोलते हुए पाया, बच्चों ने अपनी माँ को दीन पर अमल करने वाली अगर बच्चों ने पाया, क्या अल्लाह के बंदो उन बच्चों में हम बिगाड़ का तस्वुर कर सकते हैं? क्या उन बच्चों में हम झूठ का तस्वुर कर सकते हैं? क्या हम उन बच्चों में सुबहान अल्लाह बेदीनी का तस्वुर कर सकते हैं? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बेदीनी की शुरुआत हमारे घरों से होती है और हमें इसका एहसास नहीं। याद रखिएगा आप, बेदीनी की शुरुआत हमने अपने घरों से की और बाहर की जिंदगी में आके हम शिकायत करते हैं, मौलाना नौजवानों का अड्डा उधर नजर आता है और फुला वहां बहकता हुआ माहौल नजर आता है। याद रखना अल्लाह के बंदो, घर का जो बिगड़ा माहौल था उसी का असर बाहर की जिंदगी में हमें नजर आता है। पहले हर शख्स अपने माहौल को बेहतर बनाए, इंतजार ना करें कि इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी, नहीं, हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें। हर शख्स कोशिश करे, बहैसियते जिम्मेदार बाप माँ, हर शख्स इस बात की कोशिश करे कि इस्लाह की शुरुआत हम अपनी जात से करते हैं और अपने घर वालों में करते हैं। बल्कि हम तो कहते हैं कि शुरुआत हमें अपनी जात से करनी चाहिए, अपनी जात से करनी चाहिए, और हमारी शख्सियत ऐसी हो, हमें देखकर लोग अपने अखलाक को संवार लें, हमें देखकर लोग अपनी जबान को बेहतर बना ले, हमें देखकर लोग अपने ताल्लुकात को सुधार ले, हमें देखकर लोगों को दीन याद आए, अल्लाह याद आए, उसकी शरीयत याद आए। इस अंदाज से अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश कीजिएगा। नमाज की बात करते हैं नौजवानों के सामने, वल्लाही बहुत सारे नौजवान सोचते हैं मैंने कभी अपनी वालिदा और बहन को घर में वक्त पर नमाज पढ़ते हुए पाया ही नहीं, और कभी मैंने अपने बाप को वक्त पर नमाज की पाबंदी करते हुए पाया ही नहीं। जब सुबहान अल्लाह मेरे माँ बाप का हाल ऐसा है तो मैं क्यों नमाज के मामले में आगे बढ़ूं? याद रखना अल्लाह के बंदो, अगर आप नमाज के मामले में सुस्त हैं, अगर आप नमाज के मामले में कोताह हैं, आप दीन का नारा लगाएं, दीनदारी का दावा करें, शरीयत का दावा करें, वल्लाही ये दावा बेबुनियाद है। नमाज के बगैर दीन का तस्वुर ही नहीं और दीनदारी का तस्वुर ही नहीं। मैं खासकर अल्लाह की बंदियों से एक आजिज़ाना अपील करूंगा, आजिज़ाना अपील करूंगा। आप सबसे पहले यहां हाजिर हुई हैं, सुन रही हैं, आप हमारी बातों को समझ रही हैं। अगर आप नमाज की पाबंद हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इस नेकी पे आपको मरते दम तक बाकी रखे, अल्लाह ताला आपके जरिए से इस्लाह का अजीम फरीजा अल्लाह ताला आपसे ले। लेकिन याद रखना अल्लाह की बंदियों, जो बात हम बताने जा रहे हैं, इस बात में आपसे अगर कोताही हो रही है, नमाजों की पाबंदी में आपसे अगर सुस्ती हो रही है, अल्लाह के घर में बैठी हैं आप, अल्लाह के घर में बैठी हैं, ये अपने घरों से भी आप सुन रही हैं। ये तौफीक का वक्त है, ये बदलने का वक्त है, ये संवरने का वक्त है। अगर आपने दिल में पुख्ता इरादा किया, ऐ अल्लाह इसके बाद एक वक्त को मैं, एक नमाज को भी मैं जाये नहीं करूंगी, वक्त पर अदा करूंगी, वक्त पर अदा करूंगी। अल्लाह की कसम याद रखना, यहां से बेहतरी की शुरुआत हो गई। अल्लाह की मदद हमारे घरों में नाजिल होगी, अल्लाह की मदद हमारे मर्द हजरात के कारोबार में नाजिल होगी, अल्लाह की मदद हमारे बच्चों में नाजिल होगी, अल्लाह की ताईद नौजवान तबके को हासिल होगी। क्योंकि जब मां नेक होती है उसका असर बच्चों पे होता है। दोस्तों, सिर्फ नामों का असर नहीं होता है, नाम अच्छे रखा करो। उलमा कहते हैं हदीस की रोशनी में तो मां को भी नेक होना चाहिए। मां नेक है तो उसकी नेकी का असर बच्चों पे होता है, इसका हमें एहसास होना चाहिए। आप अगर बेदीन है अल्लाह की बंदियों, सोच रही हैं
कि आपके बच्चे आपकी आंखों की ठंडक का जरिया बने, ऐसा नहीं होता, याद रखना, ऐसा नहीं होता। अगर आप बेदीन हैं, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अगर आप अपनी इज्जत की मुहाफिजा नहीं है, अगर आप अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रही हैं, रब को राजी नहीं कर पा रही हैं, आपके बच्चे आपसे कैसे राजी होंगे? याद रखो आप। जब हमारे हाथ उठते हैं नमाज पढ़ते हुए सजदे में, जब अल्लाह से मांगते हैं, नमाजों के सजदों में जब अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की बंदियों, आपके सजदों से हमारे बच्चे नेक होते हैं, संवरते हैं। याद रखना, हमारी दुआएं, अल्लाह अकबर, हमारे हबीब ने फरमाया जब बाप दुआ करते हैं, बाप की दुआ, वालिदैन की दुआ अपने बच्चों के हक में रंग लाती है, रंग लाती है। अगर आपके बच्चे शरीर हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, गलत सोहबतें उन्हें मुयस्सर हैं कि वो हमेशा पढ़ाई से दूर भागते हैं, आपके नाफरमान लग रहे हैं आपको, आप अल्लाह से तौफीक का मुतालबा करना, आपकी यही नेकियां आपके बच्चों को बनाएंगी। अस्लाफ की तारीख पढ़ के देखें, औरतें किस कदर जिम्मेदार थीं अपनी नस्ल को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने घर को लेकर। जानते हैं ना हम और आप, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कौन है? 4 इमामों में दूसरे बड़े अजीम इमाम हैं ये, जिन्हें इमाम दारिल हिजरा कहा जाता है। मक्के के बड़े, मदीने के बड़े अजीम इमाम हैं, इमाम दारिल हिजरा आपको कहा जाता है। आपकी तारीख पढ़िएगा, इमाम मालिक को इमाम मालिक किसने बनाया? मालिक इब्न अनस को इमामत के दर्जे पे किसने फाइज किया? अल्लाह के फजल के बाद ये आपकी वालिदा आलिया बिनते शरीक की मेहनतों और तड़प का नतीजा है। खुद इमाम मालिक रहिमहुल्लाह अपने बारे में फरमाते हैं, अल्लाह की बंदियों, इस वाक़ये में हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह अपने वालिदा के बारे में और अपनी सुबहान अल्लाह जो बचपन की जिंदगी है उसके बारे में बयान करते हैं। बचपन में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह को गाने सुनने का बड़ा शौक था। जहां पर भी लोग जो है यानी गाने की मजलिसें मुनाकिद करते, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह बहुत छोटे थे, जाके खड़े हो जाते थे। वालिदा ने आलिया बिनते शरीक रहिमहुल्लाह ने अपने बच्चे को देखा कि गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम भी देखते हैं, अपने बच्चों को गलत ट्रैक पे जाते हुए देखते हैं। उमूमन क्या समझते हैं, बच्चा है, कभी बाप अगर समझाने की कोशिश करे, वहां पर मां कहती है कि छोड़ो जी, अभी बच्चा है, बाद में संवर जाएगा, अभी डांटो मत, अभी कुछ मत कहो, अभी गलती को गलत मत बताओ। याद रखना, अगर बचपन में आपने गलती को गलत ना बताया, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे कभी गलती को गलत तस्लीम नहीं करेंगे, कभी बुराई को बुराई तस्लीम नहीं करेंगे। बचपन से उनके जहनों में, उनके दिलों में बुराई की नफरत को बिठाइए, नेकियों से मोहब्बत उनके दिलों में पैदा कीजिए। ये बच्चे आगे चलकर मुआशरे में नेकियों का एक माहौल कायम करें, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने उनकी ऐसी ही तरबियत की। बल्कि हाल तो कैसा है हमारा, अल्लाह माफ करे, अगर बच्चा बचपन में गालियां देता है, गाने गाता है, तो अपने दोस्तों अहबाब को जमा करके जब फैमिली गैदरिंग होती है, आओ बेटे वो गाली जो है कहो, जब वो बच्चा गाली कहता है तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। कितना अच्छा और प्यारा लगता है, देखो गाली देते हुए, कहते नहीं कहते, गाली देते हुए ये बच्चा कितना प्यारा लगता है। क्या पता कि आगे चलकर यही बच्चा अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है, मां अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, मां की आंखों से आंसू निकलते हैं, मां का कलीजा सुबहान अल्लाह मुंह को आ जाता है, ऐसी हरकतें वो कर बैठता है और मां को एहसास नहीं बचपन में उसने जो लापरवाही बरती उसी का खुमियासा और उसी का नुकसान वो फ्यूचर में भुगतती है। और यहां देखिएगा आलिया बिनते शरीक, अल्लाह की बंदी हो, आलिया बिनते शरीक रहिमहुल्लाह की सीरत में तुम्हारे लिए नमूना है। क्या किया आलिया बिनते शरीक ने? इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से कहा, छोटे थे, क्या प्यारा अंदाज है, देखो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ट्रैक को आपने बदलने की कोशिश की, रास्ते को आपने बदलने की कोशिश की। क्या कहा आपने? या बुनैया इन्नल मुगन्नी इज़ा कान क़बीहल वजहि लम युल्तफत इलैहि फदइल गिना वतलु बिल फ़िक़्ह। अल्लाहु अकबर, क्या प्यारी नसीहत फरमाई आपने। आपने कहा कि बेटे गाने पे तवज्जो नहीं देते, गाने वाला जैसा भी हो उस पे तवज्जो नहीं देते, आप छोड़ दो ना गाना और इल्म पे तवज्जो दो ना। माँ की दर्दमंदी है ना दोस्तों, वो दर्दमंदी बच्चों में ट्रांसफर होती है, याद रखना।
मां अगर दर्दमंद है, उस दर्दमंदी को आप आसानी से बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज मां की जबान पे गाने हैं, ये गाने बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। मां के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का शौक बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। मां वक्त को बर्बाद करने वाली है, ये वक्त की बर्बादी बच्चों में ट्रांसफर हो रही है। हमेशा माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते एक दूसरे को बुरा भला कहते, ये बुराई बच्चों में ट्रांसफर हो रही। देखो आप, बच्चों के अंदर अल्लाह ने यह सलाहियत रखी है कि वो सुबहान अल्लाह माहौल का असर कबूल करते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चों से करीब कौन है? यही माँ बाप है, जो उठते बैठते सोते जागते अपने माँ बाप को देखते। इसलिए अल्लाह की बंदी बहुत बड़ी अमानत है ये। इसलिए मैंने कहा हशर की अदालत में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। ये तरबियत की जिम्मेदारी जो हमारे कंधों पे है, इसमें लापरवाही ना बरतना। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की वालिदा ने कितना प्यारा अंदाज था देखिए दोस्तों। तो इसमें दो अजीम जो है पैगाम है। पहला पैगाम क्या है कि ट्रैक चेंज करने की कोशिश करना, और ट्रैक चेंज करने का भी एक अंदाज होता है। हमारे यहां पर क्या है, सिर्फ बच्चों को कुचला जाता है, सिर्फ मारा जाता है, उठे बैठे सिर्फ मारते हैं हम। तो इसलिए बच्चों के जहन में क्या है, नफरत पैदा होती है, बाप को देख के डरते हैं। कभी बास जो है बाप को हमने कहते हुए सुना, मौलाना मेरा घर में ऐसा रोब है ना, घर में दाखिल हो तो क्या मजाल मेरे बच्चों को कि वो मुझसे करीब आ जाएं, मुझसे आंख में आंख मिलाकर बात करें। मैं जब घर में दाखिल होता हूं तो बच्चे जो है बिल्कुल शरीफ बन जाते हैं, कोई मुझसे करीब आता भी नहीं, पूरा माहौल कंट्रोल में होता है। ये कोई तारीफ वाली बात है कि आप घर में इस अंदाज से दाखिल हों कि घर वाले समझें, बच्चे समझें, हाँ अब जल्लाद आ गए हैं, अब बिल्कुल जो है हम अपने आप को संभालना है। घर से बाहर निकलते ही फिर उनकी बुराई की जिंदगी शुरू हो जाती है। ये एक्टिंग वाली जिंदगी हम अपने बच्चों को जो है वल्लाही फराहम ना करें। बच्चे ऐसे हों उनका चेहरा और उनका दिल आईने की तरह साफ और शफाफ हो। बच्चे बड़े प्यारे हैं दोस्तों, अल्लाह के वास्ते उनके चेहरे और दिल को मत बिगाड़िएगा। ये जो है सुबहान अल्लाह, दिल और चेहरा बच्चों का है ना, बड़ा पाकीज़ा होता है। और हमने ऐसा मामला किया, हमेशा बास जो है माँ या बाप बच्चों को सिर्फ डांटते, सिर्फ बुरा भला कहते, जबान से सिर्फ बद्दुआ, जबान से सिर्फ गाली। कहां से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे? अरे अल्लाह के बंदो, माँ का एक जुमला बच्चों को निखार सकता है, बाप का एक जुमला बच्चों के फ्यूचर को बना सकता है। क्या ऐसा जुमला इस्तेमाल करते? हम तो मोटिवेशन का तो हमारी जिंदगी से चैप्टर ही खत्म हो गया। बल्कि सिटीज में ऐसा होता है, जब मोटिवेशन की बात आती है तो बड़े बड़े स्पीकर्स को हम लाते, हजारों रुपए खर्च करते, हाँ जबरदस्त मोटिवेटर मौलाना ये, चलो भाई नौजवानों को जमा करो और मोटिवेट करो। इसकी जरूरत ही नहीं अल्लाह के बंदो। सबसे अजीम मोटिवेटर माँ और बाप है, याद रखना, सबसे अजीम मोटिवेटर। क्योंकि माँ ने 9 महीने तक अपने बच्चों को सुबहान अल्लाह उन्होंने पेट में रख के जन्म दिया है, हर तकलीफ को उन्होंने बर्दाश्त किया है। क्या अगर मां मोटिवेट करे तो बच्चे बदलेंगे नहीं? बाप की जो शफकत है, दुनिया की हर शफकत को तराजू के एक पलड़े में रखिए, बाप की शफकत को तराजू के दूसरे पलड़े में रखिए, तराजू का वही पलड़ा भारी होगा। बच्चों याद रखना, बाप आपके दुश्मन नहीं, बाप आपके दुश्मन नहीं। अगर आपको डांटते हैं, समझाते हैं, उस डांट में अपना फ्यूचर तलाश कीजिए आप। बच्चों याद रखना, आपके बच्चे अगर आपके सुबहान अल्लाह माँ बाप अगर आपको डांटते हैं ना, उस डांट में आप अपना फ्यूचर जो है तलाश कीजिएगा। वो दर्दमंदी से आपको डांटते हैं तो बाप की शफकत का मुकाबला नहीं है। और कभी बाप की जबान से दुआ निकलती ही नहीं, निकलती है क्या दोस्तों? हम लेकर आते, मौलाना दुआ कीजिए, बोलते हाँ अल्लाह जज़ाए खैर दे, उलमा की दुआएं कबूल होती हैं, नेक लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे एक अजीम बात क्या है, हमारे नबी ने वो जो है एक गारंटी और जमानत दी है कि बाप की दुआ अपने बच्चे के हक में कबूल होती है। पहले आप दुआ कीजिए, आपकी दुआएं, आपकी नमाजें आपके बच्चों को दीनदार बनाएंगी। और इसी तरह से एक और मिसाल दूं मैं आपको, इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह। कौन है ये? चौथे अजीम इमाम, इमाम अहले सुन्नह वल जमाअह। जानते हैं इमाम अहमद को इमाम अहमद किसने बनाया? आपकी वालिदा ने। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया। सफिया बिनते मैमूना आपकी वालिदा हैं। अल्लाह अकबर। खुद इमाम अहमद फरमाते हैं अपने बचपन की जिंदगी के बारे में, अल्लाह की बंदियों गौर से सुनना कि तुम घरों में अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा सकती हो, इस वाक़ये से इबरत हासिल करो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बचपन में मेरी वालिदा मुझे
जिस अंदाज से तरबियत किया करती थी उसका एक नमूना आप पेश करते हैं कि रोजाना अजान फज्र से पहले आपकी वालिदा बेदार होती थी और इमाम अहमद के लिए गर्म पानी का इंतजाम करती थी और अजान फज्र के साथ मुझे बेदार करती थी और मैं वजू करता था। घर और मस्जिद एक दूरी पर, एक फासले पर होने की वजह से मेरी वालिदा मेरा हाथ पकड़कर सुबह और फजर की तारीकी में मुझे ले आती और मस्जिद छोड़ देती, मस्जिद में नमाज फजर अदा करता और उसके बाद मेरी वालिदा मेरा इंतजार करते हुए खड़ी रहती और नमाज से फारिग होने के बाद मुझे घर वापस ले जाती। अल्लाह अकबर। ऐसी तरबियत होती है दोस्तों। याद रखना अल्लाह की बंदियों, आप अगर कुर्बानी देंगे ना, आपकी कुर्बानी से नस्लें तैयार होंगी, आपकी कुर्बानी से बच्चे बदलेंगे। आज माँ बाप को फुर्सत कहाँ है दोस्तों। आज आप देख लीजिएगा, हम घर में एक हैं, माहौल कैसा है घर का कि सबकी दुनिया अलग है। अगर 2 कमरे हैं तो 2 दुनिया वहां आबाद है। बाप एक कमरे में, माँ एक कमरे में, बच्चे हाल में, और सबके हाथ में मोबाइल है और सब अपनी दुनिया में मगन है और सबको अपनी दुनिया की फिक्र है, अपने बच्चों की दुनिया की किसी को फिक्र नहीं। इसीलिए आप देख लीजिएगा, एक बात मैं आपके सामने कहता हूं, मां को फिक्र किसकी होती है? मां को अपने मोबाइल की, सोशल मीडिया की बड़ी फिक्र होती है कि अकाउंट्स का मामला है और इसी तरह से पहुंच का मामला है और इसी तरह से सुबहान अल्लाह मोबाइल को लेकर बहुत फिक्रमंद होती हैं। हमारी माओं के मोबाइल तो बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन बच्चों में दीनी मामलात को लेकर वो खूबसूरती नजर नहीं आती। क्यों? मां मोबाइल को लेकर जितनी फिक्रमंद है, अपने बच्चों को लेकर उतनी फिक्रमंद नहीं। फिर कहां से? मोबाइल तो सवर रहा है, मोबाइल तो अपनी सहेलियों के सामने जिक्र कर शो करती हैं, देखो जबरदस्त मोबाइल, न्यू मॉडल है और ऐसा पाउच कभी आपने देखा ही नहीं और ऐसा मॉडल कभी आपने देखा ही नहीं। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे, तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह की नियामत है। लेकिन याद रखना, जितनी तवज्जो आपकी मोबाइल पर और मोबाइल के कवर पे है, मामूली तवज्जो भी बच्चों पे आप नहीं दे पा रही है। और फिर भी आपको शिकायत है कि आपके बच्चे बेदीन हैं, फिर भी आपको शिकायत है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, फिर भी आपको शिकायत है कि आपके बच्चे वक्त को बर्बाद करते हैं, फिर भी आपको शिकायत है कि आपके बच्चे सुबहान अल्लाह इल्म पर तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो याद रखो, शुरुआत अपनी जात से करो। और खासकर मैं अल्लाह की बंदियों से कहूंगा कि आपके जरिए से माहौल बदलेगा। वल्लाही घर का माहौल कैसा है दोस्तों, मर्द हजरात से पूछिए। सुकून आज की दुनिया में घर में बहुत सौ को नसीब नहीं होता। घर में दाखिल होने के बाद मसाइल का एक अंबार होता है, या तो लड़ झगड़ने का माहौल होता है या दोनों की दुनिया एक रहकर भी अलग रहती है। हमारे नबी कैसे थे, वो मशहूर वाकया जानते हैं ना आप, गारे हिरा का। कैसे थे हमारे नबी? जब गारे हिरा में पहली बार वही नाजिल हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी पर घबरा गए, परेशान हो गए, दिली बेचैनी आपने महसूस की। आपने उस दिली बेचैनी का इलाज और उसकी दवा आपने कहां तलाश की? अपने घर, अपनी ज़ौजे मुहतरमा में आपने तलाश की। और घर गए, अहलिया से कहा कि मुझ पे चादर उड़ा दो, ऐसा लगता है कि मेरी जान चली जाएगी। घबराते हुए अल्लाह के नबी दाखिल हुए इस आलम में। जब आपने अपने सुबहान अल्लाह शौहर को पाया, नेक खातून कौन होती हैं जो अपने शौहर को तसल्ली देने का सामान फराहम करती हैं? वल्लाही आप अहले इल्म से पूछिएगा, मैं खतीजा ने फौरी तौर पे ये सवाल नहीं किया, ऐ अल्लाह के नबी क्या मामला है, क्या माजरा है, बताएं तो सही, क्या माजरा है, क्या परेशानी, क्या आफत है? आपने पूछा नहीं। क्यों? नेक खातून कौन है जो अपने शौहर की बात फौरन मानती हैं। मसलन आपके शौहर टेंशन में घर में दाखिल हुए, बिजनेस का कोई टेंशन था, बाहर की दुनिया का कोई टेंशन था, और कहा कि घर में दाखिल होते चाय बना के दीजिए। ये सवाल मत कीजिए चाय बनाने से पहले, क्यों बहुत परेशान है, पहले रीजन बोलो, फिर मैं चाय बनाऊंगी। वहां कियामत आ जाएगी। पहले से वो परेशान है और आपसे चाय का मुतालबा कर रहे हैं। नेक खातून क्या है जो अपने शौहर की बात मान, फौरी चाय बना के दीजिए आप। आहिस्ता जब उनका दिल जो है थम जाए, फिर आप सवाल कीजिए, सुबहान अल्लाह क्या माजरा है, और फिर तसल्ली के अल्फाज कहिए जो माए खतीजा ने पेश किया, कल्ला वल्लाही ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा। अल्लाहु अकबर। ये एक नई खातून होती हैं। इसलिए मोहतरम खवातीन, अगर आपने घर में ऐसा रोल अगर पेश किया, अल्लाह की कसम घर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे इंशाअल्लाह। खुलासा कलाम ये है,
मोहतरम हजरात व ख़वातीन, घर की इस्लाह ये बड़ी अजीम जिम्मेदारी है, और ख़ासकर ख़वातीन अगर दीनदार हों, नमाजों की पाबंद हों, जैसा कि मैंने कहा, इस मजलिस में उठने से पहले हर मुसलमान को, खुसूसन ख़वातीन को से हम अपील करते हैं, ये अहद करके उठिएगा, इसके बाद हम नमाजों को ज़ाय नहीं करेंगे। हम अपने घरों में हम नमाजों की जरूर पाबंदी करेंगे, खासकर ख़वातीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान का मतलब क्या है? कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती है, वहां नमाज अदा नहीं की जाती है। तो इस तरह से वो घर कब्रिस्तान नुमा है जिस घर की औरतें नमाज की पाबंदी ना करें। क्या अल्लाह की बंदी हो, दिन में 5 वक्त हम अल्लाह के लिए वक्त नहीं दे सकते हैं? अगर वक्त नहीं दे सकते हैं तो फिर ये ईमान का दावा कैसे? फिर ये ईमान का दावा कैसे? फिर ये फरमाबरदारी का दावा कैसे? अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह के वास्ते नमाजों की पाबंदी कीजिए, वक्त को बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारी औरतें क्या है, मशगला क्या, सिर्फ घर को यानी पकवान की जिम्मेदारी, पाकी सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ ये आपके कंधों पे नहीं है। उससे फारिग होने के बाद क्या करती हैं? सीरियल। अल्लाह की पनाह, आज हर मसले की जड़, घर के बहुत सारे मसाइल की जड़ ये सीरियल है। हमारे मर्द हजरात से कहूंगा, अल्लाह के वास्ते रिचार्ज मत करो। अगर घर में सिर्फ सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आप गुनाह का सबब मत बनिए। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर रिचार्ज खत्म हो जाए, अगर शौहर बहुत ज्यादा बिजी भी हो, जाते जाते अपने घर को बिगाड़ने का सामान फराहम करते हुए जाते, रिचार्ज करके जाते। ये रिचार्ज करना क्या है मालूम? कि यहां से घर की बर्बादी शुरू होती है। और प्रॉब्लम देखिए आप, सीरियल देखकर बहू सास के खिलाफ प्लानिंग करती है और सास बहू के खिलाफ प्लानिंग करती, और अजीब और गरीब मसला है कि दोनों बैठकर जो है सीरियल देखते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। सीरियल की लानत क्या है? घर की बर्बादी है। वल्लाही उस घर से इस्लाह हो नहीं सकती, या उस घर से इस्लाह का फरीजा अंजाम नहीं हो पाएगा जिस घर की औरतें सीरियल की पाबंद हो। अल्लाह के वास्ते सीरियल से तौबा करो। अल्लाह की बंदी हो, ये टाइम पास नहीं है। मर्द हजरात कहते हैं हम तो दिन भर बाहर रहते हैं, औरतें बेचारी क्या करेंगी? वो तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें, वो तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें, वो तो अपने दिल को बर्बाद कर लें। अल्लाह के वास्ते बर्बादी का सामान फराहम मत करो, बर्बादी का सामान फराहम मत करो। अगर देखने की पाबंद हैं, आज से ही तौबा करो, आज से ही तौबा करो। क्या पता कि अल्लाह आपके इस अमल से राजी हो जाए, आपके घर को अल्लाह ईमान से आबाद कर दे। अल्लाह ही सारे प्रॉब्लम हल होंगे ना इंशाअल्लाह हमारे। इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी औरतों को दीनदार जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तरबियत की अजीम जिम्मेदारी जो हम सब के कंधों पर है, सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ इख्तियार करते हुए हशर की अदालत में जवाब देना है। इस एहसास के साथ तरबियत का अजीम फरीज़ा अंजाम देने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औरतों को हिम्मत दे, अल्लाह हमारी औरतों को सेहत व आफियत के साथ रखे। अल्लाह हमारे घरों में चैन व सुकून के फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हमारे मर्द हजरात जो बाहर की दुनिया में कमा रहे हैं, अल्लाह ताला कमाई में बरकतें नाजिल फरमाए। हर किस्म की माली आफत से हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सेहत व आफियत के फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों में दीन के फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को अच्छी सोहबतें नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, माँ बाप की आंखों की ठंडक का जरिया बना दे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनके दामन में नेक औलाद के फैसले फरमा दे। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को खैर से जोड़ दे। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको दीन का पाबंद बना दे। अल्लाह हम सबको शरीयत का पाबंद बना दे। अल्लाह हम सबको ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए जिससे रब राजी हो जाए। हर उस काम से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए जिससे वो नाराज हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक ईमान पे बाकी रखे, आमीन। अहबाब जमात की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बना दे। अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दे, आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।